Assalamu alaikum. This is Aisha Ali from 101 Incredible Women CEOs of Pakistan. Today we are having an incredible woman, Dr. Nazish Faisal. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are you, ma'am? I'm very good. How are you? As I have seen your profile, आपने माशाल्लाह बहुत कुछ किया है. You are a volunteer, you are a mother, you are a good person, you are doing lot of things, furniture, all these things. How you are going to manage all these things? What is your journey? Alhamdulillah, I'm doing these all things very nicely. Since my childhood, when I was kid, I was studying in school. I was a very good student, and I was doing a lot of extracurricular activities other than my education. So it's something I have God gifted. Okay, so आपने जब ये start किया सब कुछ तो आपको क्या what problems you have faced to doing all these things, a lot of things, because as you say about your starting, you were only I think 21 to 22 years. Yes, I actually did my Doctor of Pharmacy from Punjab University, and after that I had my MPhil and then in my PhD in pharmacy practice from Quaid-e-Azam University, and I had split program in University of Strasbourg, France. So I happened to do my research on cancer there in France. So during my education journey, I actually working as I started my career in pharmaceuticals, and after that I had my career in education, and then I started working in Cancer Care Hospital. It is a foundation and NGO. I worked there as a director marketing, and I spent like 7-8 years there, and it's the biggest charitable project of Pakistan. It's the first palliative care unit of Pakistan. It's a very great project. So I'm so lucky that I worked there, and I visited and I traveled all over the world for the noble cause, and I delivered 100 plus lectures in all the universities and schools in Pakistan. So on cancer awareness and breast cancer and anti-smoking campaigns, and I registered around 1600 volunteers and students from all the universities and make a cancer care society. So it was a beautiful time of my life, and it was amazing journey with Cancer Care Hospital. RF, furniture and interior that you have said you are doing this main business is yours. Yeah. Please tell me about all this. I started and made my company RF Events Private Limited in 2019, and I have one child. Her name is Riza Faisal, and my company name is RF Events. So I started my journey as an entrepreneur from my own company, and I did 70 plus top of the line furniture and interior events throughout the country. And it's, you can name any city of Pakistan like Lahore, Karachi, Islamabad, Pindi, Faisalabad, All over the Pakistan, all over the Pakistan we had conducted amazing events, and we are the #1 company of Pakistan, alhamdulillah. And we are also planning some other ventures as well this year. Acha. And what plans for the next coming 2-3 years? What do you want to do other for that? I first of all, I want to grow my organization, my company, and all the employees we have in our company. I want to see them very successful, and we have some international plans as well for the events for Pakistan. So yeah. What message you want to give the youngest girls and boys, the youngsters? Being entrepreneur, I have my all families belongs to education sector. They're all PhDs and doctors and lawyers. My all siblings are, they're all doctors, and I was the first. I'm also a doctor. I did my PhD because of my family, and my inspiration is my husband as well. He's also PhD, and he's working in government sector in teaching sector. So he helped me a lot, and being entrepreneur, I wish and I advise everyone that do whatever you want. As you know, I'm a doctor and I'm doing events. People used to ask me why you are doing events as you're a doctor. But in my mind. Yeah, but actually that's my own self. I groom myself, and I want to do PhD
because it was my father dream, it was my brother dream. My brother is Dr. Anwarul Haq. He is also a very, he's a professor in some great university in UK. He is my inspiration. He helped me a lot. He used to listen to me when I was young and I was in school, my little things, my little activities, and he always encouraged me to study and आप हमेशा अपने पाँव पे खड़े हो जाओ और मेहनत करो और सबके लिए रोल मॉडल बनो. एंड बीइंग अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल कि मैं फैमिली में सब प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और मैं एकदम से अपना सारा कैरियर कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, और फिर मैं खुद से अपना बिजनेस करूँ. तो लेकिन उसमें ऑब्वियसली मेरी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है. मेरी मदर का मेरी मदर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है. फिर जो लोग भी मुझे मिले लाइफ में वो बहुत अच्छे मिले. आइदर वो मेरे कोलीग्स हों, आइदर वो मेरी कंपनीज हों जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, या कुछ भी लोग हैं, मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले हैं लाइफ में. और मैंने मेरी कामयाबी का राज मैं समझती हूँ कि मेरे साथ कुछ भी कोई करे, मैं उस सबको माफ़ कर देती हूँ और मैं किसी का चीज़ दिल में नहीं रखती हूँ. मैं कहती हूँ कि ठीक है, बस आप इन सबको माफ़ कर दें. कोई भी इंसान गलती करे, कुछ भी करे, तो मैं हमेशा लेट गो करके आगे बढ़ती हूँ. और मैं सबको यही कहती हूँ कि कुछ भी दिल में नहीं रखें और आगे बढ़ें, और ये आपकी तरक्की का सबसे बड़ा राज है. Faced negative things from people? आई डोंट थिंक सो. मुझे तो जैसे बीइंग वुमेन, एंड जैसे कि हम 101 इनक्रेडिबल वुमेन के प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, और मैं आई एम सो एक्साइटेड कि आपने मुझे इधर बुलाया, और आई एम सो हैप्पी आप लोगों का जो देखकर माशाल्लाह वकार, और आप लोगों के जो बहुत अच्छा इखलाक है, इट्स वेरी इम्प्रेसिव एंड आई एम वेरी थैंकफुल. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि औरतों को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बल्कि मैं समझती हूँ कि इसके ऑपोजिट है. ठीक है, वो छोटी मोटी चीज़ें जो फीमेल्स को थोड़ा सा करनी पड़ती है, लेकिन आप अगर एजुकेशन लेवल पे देखें तो फीमेल्स मर्दों से आगे हैं. हालांकि पाकिस्तान का 53% जो पॉपुलेशन है वो जो है वो फीमेल्स के ऊपर वो है, ठीक है, मर्दों से ज़्यादा पॉपुलेशन है. आप यूनिवर्सिटी सेक्टर में, क्योंकि एकेडेमिया से भी रही हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी के लेवल में भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाया है फार्मेसी के, तो बच्चों के निस्बत जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथ में भी होती हैं, और दे आर more studious and they are more serious about their education. और अगर आप परसेंटेज देखें तो 5 to 10% बॉयज़ होते हैं, बाकी 70-80% गर्ल्स ही बहुत बड़ी बड़ी हायर डिग्रीज पे जा रही होती हैं. तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स भी अपनी बेटियों पे बहुत स्पेंड करते हैं, और एक बहुत ही मजबूत जो है वो ख़वातीन बनाते हैं, और जो आगे जाकर बहुत ज़्यादा पिवटल रोल प्ले करते हैं अपनी मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए. तो मुझे ऐसे कोई अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी. हाँ, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपनी जगह बनानी पड़ती है, और डट के मुकाबला करना पड़ता है आपको लाइफ में. और आपको कभी भी घर से प्रॉब्लम्स नहीं होती, प्रॉब्लम्स हमेशा बाहर से होती हैं. तो वंस यू हैव रियलाइज कि आपने कैसे चीज़ों को टैकल करना है और लोगों का मुकाबला कैसे करना है, तब बी पॉजिटिव, आप अच्छी ड्राइव लेके चलें, किसी के लिए नेगेटिव ना सोचें. मेरा तो यही ख्याल है कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी ज़िंदगी देखी है उसमें मैंने ये सोचा है, और मैंने ये फैसला भी किया, और मैंने अपने ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया है कि आप फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये 2 वर्ड्स हमेशा याद रखें. कुछ भी आपके साथ हो वो हमेशा रह नहीं सकता वहाँ पे. आगे बढ़ें, कुछ भी, हर चीज़ पास्ट हो जाती है, ठीक है जी. एज यू से आपने वॉलंटरली काम किया है कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर केयर. आपने कभी ये नहीं सोचा, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर एज वेल, कि मैं भी इसमें कुछ अपना कोई खोलूँ, कोई क्लिनिक या ऐसे कोई चीज़, या किसी को इसके ऊपर अवेयरनेस लेकर आऊँ, या ऐसा कुछ करूँ, लाइक एन NGO वर्किंग? एक्चुअली मैंने काफ़ी काम किया, और मैं उस पर बहुत सेटिस्फाइड हूँ. मुझे कभी ज़रूरत नहीं लगी कि मैं वो करूँ, क्योंकि वो मैंने काम किया है, और वो हमने इसमें बहुत ज़बरदस्त फीमेल्स की अवेयरनेस कैंपेन्स की, और जैसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन, मैमोग्राफी हमने
प्रॉपर वे में मैमोग्राफिक मशीन्स हमने जो 6-6 करोड़ की मशीन्स है, मैंने उसके लिए फंड रेज किया, उनके यूनिट्स बनवाए और उनको रिमोट एरियाज़ में पाकिस्तान के जिन देहातों में फीमेल्स को अवेयरनेस नहीं है कि 40+ फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस से हवाले से हमने उनको मेमोग्राम्स दिए जो कि ब्रेस्ट एक्सरे होता है। तो हमने वो उनको FOC फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उसको उनकी डोर स्टेप के ऊपर हमने वो सहूलियात मुहैया की उनको। और हमने बहुत सी ऐसी फीमेल्स को कैंसर से बचाया। उसमें से कुछ जैसे अगर 100 लोगों की फीमेल हुई है या कुछ भी लोगों की, तो 1-2 को भी अगर हल्का सा हमें फील हुआ कि उनको कैंसर के चांसेस हैं या तो फिर उनको फर्दर टेस्ट कराए, तो उनकी हमने जानें भी बचाई हैं। इसके साथ साथ ऑब्वियसली ये हॉस्पिटल माशाल्लाह बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। रायविंड के ऊपर है कैंसर केयर हॉस्पिटल। तो वो इतना अच्छा है सब काम कि मैं अभी भी अपने बहुत से पेशेंट्स होते हैं, हम उनको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो एज अ वॉलंटियर तो मैं अभी भी कर रही हूँ। और जब मैं काम करती थी तो मैंने एज अ मार्केटिंग डायरेक्टर वहाँ पे काम किया। ओके, what message you want to give for the new generation person, as you आपने बताया है अभी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ आप उसमें ऐड करना चाह रही हूँ? बस मैं ये चाहती हूँ कि जैसे जो हमारी जनरेशन है वो बड़ी देवर वेरी काइंड एंड ओबीडियंट अपने पेरेंट्स अपने बड़ों के साथ बहुत ज़्यादा। अब मैं भी ये चाहती हूँ कि अब जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया पे ज़रूर टाइम दे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम अपने पेरेंट्स को अपनी फैमिली को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को ज़रूर वो टाइम दें और अपने काम के वक्त काम करें और अपने फैमिली टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, क्योंकि ये टाइम बहुत कीमती होता है अपनी फैमिली को देना। और सच बोलें, मेहनत करें और आगे बढ़ते जाएं, तो कुछ भी चीज़ उनको रोक नहीं सकती है। थैंक यू सो मच।